मेरे मेरे मदर हमेशा एक चीज हमेशा बोलते थे कि सोनू देख तू उन बुलंदियों पे पहुंचेगा जहां पे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा. एवरीवन यूज्ड टू से दैट कि सोनू जो तू कर सकता है कोई नहीं कर सकता. फ्रॉम स्कूल डेज आई यूज्ड टू टेक ऑल दिस पंगा ऑफ डिफरेंट व्हाटएवर आई थॉट आई कैन डू इट, आई यूज्ड टू डू इट. आपको आपकी असली ताकत का अंदाजा तब पता चलता है जब आप लोगों की मदद करने निकलते हैं. देन यू विल कम टू नो हाउ पावरफुल एंड हाउ सक्सेसफुल यू आर. I read this phrase called not all superheroes wear capes, but I think I have the perfect person for this example. Thank you, Sonu Sood, for joining us. I want to first ask you, are you overwhelmed with the love and support that you've been getting all these months now? Thank you so much for having me. And I don't have any words to, describe what last 8 10 months 10 months have been for me. I reinvented myself. I found a purpose. I believe that this is the reason I came to Mumbai almost 17 18 years ago. Though I must have done 100 movies and must have been a part of the biggest blockbusters in all different languages, but what I experienced in last 9 months, it defines everything. I think my mom and dad, I miss them more every single minute. I wish they were there, and they used to be very happy to see my movie or a movie poster or see my interview in a magazine. My dad always used to keep those magazines in his counter at his shop, and she used to show it to everyone who used to come ki dekh mere bete ki picture aayi hai. This is this new article that has come. Small clippings bhi aati thi, he used to save. And today when I see so much of love pouring in from all over, I miss them more today, and I wish they were there to see what their blessings have done for me. Going through the index of the book, and I couldn't help but notice that the first chapter is dedicated to your mom. Yeah. I think Nita, I'm here only because of her. She taught me everything in life, and मेरे मदर हमेशा एक चीज हमेशा बोलते थे कि सोनू देख तू उन बुलंदियों पे पहुंचेगा जहाँ पे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा. She always used to say that when I started my journey. मम्मा हाँ यार, जब पिक्चर मिल जाती, मम्मा देखा पिक्चर मिल गई, देखा मैंने बोला था ना बेटा. And now if she would have seen this happen, she would have, I don't know, she would have just maybe hugged me and cried and would have said, thank you Sonu for what you have done. And now as parents, we believe that we have done something right in life. We taught you all the lessons of life. I think in a right way. तब नहीं पता चला कि वो जो lessons माँ बाप सिखा रहे हैं आपको, वो शायद किसी किताबों में या स्कूल में नहीं पढ़े जाते. वो जिंदगी सिखा रही थी आपको, और आज जो भी कुछ हो पाया या मैं सड़कों पे निकल पाया. So I'm there because of that. As they say, like mother, like son. You're an international actor, you're a producer, you're an entrepreneur, you're a social worker. But I think now you've added another feather in your cap. You are now often dubbed as the messiah of migrants for all the philanthropic work that you've done during the ongoing pandemic. Where does your strength lie to do what you did? I think the faith that people had in me, the responsibility that they gave, they put on my shoulders. मुझे याद है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ और मैं तो हम लोग खाना ही बांट रहे थे, just distributing food, and I said कि यार इतने लोग पैदल जा रहे हैं, अगर मैं इनको घर भेज दूँ तो and I said we went to the police station, DCP office. I said I want to send them back to their home. They said नहीं भेज सकते ना सर, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे भेजेंगे आप? They said ये तो पैदल तो चल ही रहे हैं, सड़कें तो खुली हैं, तो अगर मैं भेज दूँ, they said can you get all these permissions from all different states of every single individual who's on the road, कि अगर आज कोई बैंड्रा से है, नाला सुपारा से है, वसाई से है, पालगढ़ से, हर बंदे की उस पुलिस स्टेशन के उस रिस्पेक्टिव एरिया से परमिशन लेनी है, उनके मेडिकल टेस्ट कराने हैं, और फिर जहाँ पे जा रहा है वो उस जगह की लेनी है. तो सर कहाँ से लेके आओगे आप इतने लोगों की? मैंने बोला कि अगर मैं ले आऊँ सर, कहते भेज देंगे, तो आप लेके आओ. सो देन आई
Then I went to those police stations. I spoke to all those people in those states, and then I got permissions for those first 350 people when we sent them to Bangalore. And this is Karnataka, and this is how the whole journey started. And then in no time, in a week's time, from Jammu Kashmir to Kanyakumari, almost 6-7 lakh people connected with us, and then we were sending them every single day. I'm very intrigued to know, how did the title of the book come into play? How did you decide on that? I used to feel very embarrassed when people used to say, "Yeah, you're a messiah, लोगों के मसीहा बन गए आप, गरीबों का मसीहा हो." तो मैंने बोला, यार मैं बड़ा कॉमन इंसान हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह माइग्रेंट हूँ जो इस शहर में कुछ करने आया हूँ. तो मुझे थोड़ा सा एक ऑड लगता था. मैं सबको बोलता, नहीं यार मैं मसीहा वसीहा नहीं हूँ, यार मैं कुछ नहीं, मसीहा नहीं हूँ. तो मैं वो रेगुलरली बोलता रहता जब लोग बोलते थे. और जब किताब लिखने लगी तो मुझे सबसे पहला शब्द वही आया कि मैं एक बार अंडरलाइन कर दूं कि भैया मैं भी कॉमन मैन हूँ, आई एम नो मसाया. So I think that's how the title came, and I just shared with the publishers and everyone, and they said, no, it's beautiful, and I think we can go ahead with that. What were some of those moments, the difficult moments, for you to actually express on the paper that you felt during the lockdown? You know, it was a journey which I lived every second. You know, the insecurity कि लोगों को कल घर नहीं भेज पाऊंगा. There were thousands of people standing in front of my building. 4,000, 3,000 people. The cops used to come कि आप निकलो यहाँ से. सर नहीं, सोनू है ऊपर रहते हैं, सोनू साहब वो घर भेजेंगे हमें. बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, नए नए प्लेस. कोई बंदे लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नीचे खड़े हों, वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमें भेजेंगे. तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ से लोग नहीं बुला रहे थे, नहीं भेजने की, और उनको एक विश्वास हो गया था. You know, it's easy to put it on paper, but to execute it, it's now I feel it was something impossible. कि आपको पूरा देश बोल रहा है कि हम घर जाएंगे लॉकडाउन में, जब आपको इजाजत नहीं है बाहर जाने की, आप लोगों को भेजेंगे कैसे? बट लाइक आई सेड, देयर वर विशेस, देयर वर प्रेयर्स ऑफ ऑल दीस पीपल हु वर वर्किंग. उनके पेरेंट्स जो इंतजार कर रहे थे अपने बच्चों का उनके घर पहुंचने का, उनकी दुआएं इंतजार कर रही थी. पर मुझे हमेशा एक चीज ये लगती है कि बहुत लोग जर्नी में खो गए. आई रिमेम्बर देयर 393 पीपल हु डाइड इन दिस जर्नी. लोगों को घर भेजना, मुझे लगता है कि अगर मैं शायद उन तक पहुंच पाता या कहीं उन रोक पाता, शायद मैं कुछ और जाने बचा पाता. मुझे ऐसा हमेशा अभी भी लगता है कई बार मैं बैठता हूँ. फिर मुझे कई मेरे दोस्त बोलते हैं, यार तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थी सबको देश को भेजने की, पर तूने बहुत लोगों को भेजा. पर मुझे लगा कि यार शायद मैं अगर थोड़ा सा पहले, एक हफ्ता पहले शुरू कर दिया होता तो शायद वो लोग चलते नहीं पैदल, मुझे मैसेज करते और मैं उनको बचा पाता. सो आई थिंक वो मुझे हमेशा एक चीज बॉदर करती है. बट लाइक आई सेड, बट एटलीस्ट यू नो आई ओपन डोर्स फॉर मेनी पीपल सिटिंग अक्रॉस. छोटे छोटे बच्चे मुझे दिल्ली से फोन करते रहे कि हम पिगी बैंक में हमारे पास पैसे हैं, हम एक बस भेजना चाहते हैं, सोनू अंकल आप हमें परमिशन दिलवा दोगे? सो आई गॉट परमिशन फॉर देम, और उन्होंने बस भेजी बिहार. सो आई थिंक ऑल दोज मोमेंट्स आर वेरी वेरी प्रेशियस. और मुझे लगता है कि वो जब बड़े होंगे और उनको याद आएगा कि हमने यू नो हेल्प की थी और हमने जान बचाई थी, एंड आई थिंक दे विल ग्रो एज बेटर ह्यूमन बीइंग्स. यार इमेजिन, अगर सोनू सूद इतना कर सकता है तो गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती थी. सो यू नो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक one man army against, or not against, but as a opposite to a system in the country. That is the kind of standing that people that you have in everybody's mind. How did you actually get the money to do all of this? आपको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत की तो हम लोगों ने खुद ही अपने लेवल पे किया. मेरी एक दोस्त है नीति, हम लोगों ने बोला कि यार खाना देते हैं लोगों को. हम खाना दे रहे थे, फिर हमने बोला कि यार इन लोगों को जरूरत है, इनको बसेस से भेजा है. बसेस से भेजा भी उनको, काफी लोगों को बसेस से खुद ही हम लोग भेज रहे थे अपने लेवल पे. फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा बसेस जाते हुए तो लोगों ने कहा कि यार यू नो आई आल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. कैन आई स्पॉन्सर द फूड इन द बस? Can I send some water for the people who are traveling? I said, भेज दो यार, पानी भेज दो उनको. Then said कि can I sponsor half a bus? कि आप कितना बस का लगता है आपको? इतना लगता है यार, क्या मैं आधी बस मैं मेरी तरफ से भेज सकता हूँ? मैं क्या भेज दो यार, दिस इज ट्रैवल एजेंट, मैं करवा देता हूँ. लोग जुड़ने शुरू जुड़े मेरे साथ. बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले करता रहा, बहुत सारे लोग आए, जुड़े. ठान ली कि बॉस जितने मैं काम करूंगा ब्रांड, मैंने 50-60 ब्रांड साइन किए, सारे हिंदुस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं. मैंने बोला कि मैं सोचूंगा, मैंने कुछ नहीं साइन किया, मैं जितना आएगा सारा का सारा मैं लोगों को लगाने में लगा दूंगा. अगर मुझे कोई बोलता था सोनू आपकी फीस क्या है, एक्स फीस है, मैं बोलता था हाँ एक्स है, मैं एक्स लूंगा नहीं, आप एक एक्स मेरा रहेगा, एक्स आप इसके अंदर और डालिए तो 2x होगा, 2x से मदद करेंगे लोग.
what if a director approaches you? Would you like to play Sonu Sood in the film about the whole pandemic? मेरे को ऑफर आ चुकी हैं, बड़े लोगों से ऑफर आई हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ों की आई हैं, पर पता नहीं अभी तक आई एम नॉट मेंटली वेरी रेडी टू डू दैट, बट देखेंगे कि आने वाले सालों में उसकी क्या अहमियत रहती है, एंड बट दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ टू कीप द गुड वर्क गोइंग दैट वी हैव स्टार्टेड। जो उम्मीदें अभी लोगों तक पहुंचाई हैं, उम्मीद की कैनवस पे अभी खरा उतरना बहुत जरूरी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, लेकिन लेट्स सी, जब समय होगा तो उस दिन हो जरूर जाएगा।